galaxy of intellectuals, esteemed directors, invited guests, teachers, and our lovely students. How different is this evening you will discover as the colors of this cultural fest unfold. Words are rose petals that are sprinkled with fragrance to invite one and all with warm greetings. Not merely words, are heartfelt feelings filled with emotions of flavor to welcome you. Our excellence in every field, on every occasion, in every walk of life, is being exemplified for our good selves. The scintillating performances of maid and maids, with much honor and pride, is presented to you all. Dear passengers, you are welcome to board in MT 2016 flight. Please be seated and fasten your seat belts. Our flight, MT 2016, will start short while from now. While you are all on journey to your destinations, to make your journey memorable one, we would like to present to you annual day program of Maharaja Agrasen Institute of Technology and Management Studies. We have 3 pairs of crew, the Blooming Buddies, to take you all to the paradise of cultural extravaganza. Now it's my pleasure to introduce you the crew members to take you on board and make this evening's journey a spectacular one. Me, Sukanya Rai as captain, co-pilot Neha Sharma, Vishwajit Singh Devansh Gupta, Anushka Jain and Shruti as relief crew. Well, ladies and gentlemen, we express an awesome audience in the presence of all gathered here. This academic year is indeed a very special in its own way. We are sure that panoramic view of the cultural programs will captivate you and your minds. Sit back, relax, and take back home all the sweet memories. When music ends, nothing begins ever. So we have Swarag, the Music Society of Maims with us today. यहाँ पे बैठे सभी गणमान्य अतिथियों का और कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं उनका हमारी तरफ से स्वागत है। अब आपके सामने हम 3 गाने पेश करने जा रहे हैं। पहले 2 हिंदी सॉन्ग्स हैं, उसके बाद एक इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं एक नए गाने के साथ, मैं रहूं या ना रहूं। किसी रोज बारिश जो आए समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। किसी रोज बारिश जो आए
मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। थैंक यू। अब हम आपके सामने स्प्लिट्सविला का थीम सॉन्ग जो था आ हटे वो पेश करने जा रहे हैं। मैं हमेशा स्टेज पे गलती करता हूँ, मैं अपने बैंड के लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे साथ वोकल्स और गिटार पे हैं आयुष्मान, हमारे पास जेम्बे पे हैं वंश, और यूकेलेले पे हैं आदित्य, और गिटार पे हैं समर्थ, वोकल्स पे सुजॉय जॉन, और मैं अभिषेक पटियाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं आ हटे। आशा करता हूँ आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तेरा हूँ मैं, तुझे क्यों ना यकीन है, चाहत में मेरी आखिर क्या कमी है, तुझ में ही तो छुपी मेरी खुदी है, मेरी खुदी कुछ ना सही, कुछ ना सही, कुछ ना सही। कहीं ना कहीं यादें हो रही तेरी, दिल के दर पे मेरे, तू यही है कहीं ना कहीं। थैंक यू। अब आप सबके सामने आयुष्मान एक इंग्लिश गाना गाने जा रहे हैं, तो ही इंट्रोड्यूस। Hello everybody.
My name is Ayushman and today I am going to sing Grenade by Bruno Mars. And thank you. And it will be a little bit of different version than the original. So give it up, guys. Easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you were sober from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? I gave you what I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever asked. What you don't understand is I catch a grenade for you. Throw my hand on the blade for you. I jump in front of the dreams for you. You know I'd do anything for you. Thank you, guys. Well, I guess आप सबकी response ने बता दिया कि performance काफी जानदार थी. So, the world of dance is totally different. It's undefined. It gives us pure feeling of happiness. Today we have among us Sakshi Sri of MADE performing a type of national classical dance with alternating passages of mime and dancing, which is commonly known as Kathak. She is a DID contestant, a national level Kathak dancer, trained belly dancer, and also an international karate kid. We present to you Sakshi Sri. ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Ding,
राखी गुलजार जी, राखी गुलजार जी की तालियां प्लीज। राखी गुलजार जी, आप हमें बताएंगे कैसा लग रहा है आपको? मतलब देखो इतनी सारी बच्चे बैठे हैं और कैसा लग रहा है? मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं मतलब हाँ करण अर्जुन तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपकी बात ठीक है। मतलब लेकिन मतलब कैसा लग रहा है? कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ मतलब कुछ तो? मेरे करण अर्जुन आएंगे। आए तो बहुत सारे थे। आपका कोई अलग टैलेंट जैसे अभी डांस दिखाया? मैं कोई शेरो शायरी सुना। शायरी के लिए तालियां। राखी गुलजार जी शायरी सुनाएंगे, आज भी शायरी सुनाइएगा। औरा ऐसा डांस दिखाएगी, वाह क्या बात है। सब हंस के गिर जाएंगे। औरा ऐसा डांस दिखाएगी, सब हंस के गिर जाएंगे। और अगर नहीं हंसे तो मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन नहीं आएंगे और आएगा। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय औरा। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। I know what you came here to see. If you're afraid, then come on with me. And I know what you came here to do. Hey, wait, I said open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real. It's going down, 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 down. It's going down. What the It's going down for real. It's going down for real. This time it ain't just about being fast. Carry on. बाकी बातें पीने बाद, बाकी बातें पीने बाद, मेरे यार
निके shots, ये निके shots, सोच के हरज नहीं सौंप गया मैं, ये निके shots, ये छोटे shots। क्या बोलती तू? इतनी सी साइज पर इतनी बड़ी छलांग। छोटे साइज की चीज ही बड़े बड़े काम करती है। मॉडर्न लाइफ की कैंसर जैसी बीमारी बन चुकी है टेररिज्म, आतंकवाद और दुश्मनी। तो लाए हैं अपना मोनो एक्ट यथार्थ मंचन, एक टेररिस्ट यथार्थ मनचंदा। तो प्लीज वेलकम फॉर हिज मोनो एक्ट यथार्थ मनचंदा। कहाँ हो मनचंदा जी? कहाँ हो मनचंदा जी? मनचंदा जी प्लीज स्टेज पे आइए। पल पल तरसते थे जिस वो पल ही मिला कुछ पल के लिए। अब सोचता हूँ ये पल मिल जाए हर पल के लिए, पर ये पल ना मिला एक पल के लिए। आज फांसी है मेरी, फांसी। कोई डर नहीं है, बस एक घुटन है। कत्ल कर रही थी मेरा। मुझे तो लगा था कि जन्नत नसीब हो, पर अब तो लग रहा है कि जहन्नुम में मिल जाए तो बहुत है। जानना चाहते हैं क्यों? जब मैं सिर्फ 17 साल का था तो खालिद चाचा आए और बोले, हामिद तुम्हें अल्लाह से रूबरू होना है। खालिद चाचा अल्लाह? हाँ हाँ मुझे मिलना है अल्लाह से। अम्मी जान ने अक्सर बताया है कि अल्लाह की ही तो बनाई हुई दुनिया है ये। खालिद चाचा मुझे एक बड़े बाजार में ले गए और बोले, ये लो हामिद, ये उठाओ, ये औजार तुम्हें अल्लाह से रूबरू कराएगा। हंस पड़ा, मेरे हाथ कांपने लगे। खालिद चाचा ये हम क्या कर रहे हैं? ये तो गलत है ना? कुछ गलत या सही नहीं है हामिद। तुम्हारे अल्लाह से रूबरू होने का बस एक यही जरिया है। चलाओ उसे और कर दो इस नापाक धरती को पाक। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं ये नहीं कर सकता था। हामिद अपने हाथों को सख्त करो। इन काफिरों को जहन्नुम पहुंचा के ही तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अपने अल्लाह से मिल पाओगे तुम। और तुम्हारी अम्मी जान भी तो यही चाहती थी ना। ये सुन के एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी मुझे। अल्लाह से मिलने की चाह ने मुझे और मजबूत बना दिया था और बस
पहुंचा चुका था मैं। मेरे जैसे और भी थे वहां जो अल्लाह से मिलने को बेताब थे। हम अक्सर ये करने लगे और मेरा मन बस चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि हे काफिरों, तुमने अल्लाह की बनाई इस पाक दुनिया को नापाक कर दिया है। अरे बहुत है तुम्हें जहान के। मुझे नहीं पता था ये गलत है ऐसे, बस खालिद चाचा की बात याद थी। हामिद, तुम्हारा जन्म इन काफिरों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए ही हुआ है और बहुत जल्द तुम अपने अल्लाह से मिल पाओगे। पर एक दिन मानो मेरी दिल पे एक आखिरी दाग लग गया। ऐसा लगा कि उन काफिरों की भीड़ में मेरी अम्मी शामिल थी। मेरी गोली उनके सीने को चीरती हुई निकली और मेरे दिल से चीख दी, अम्मी! अम्मी जान उठिए ना, उठिए ना अम्मी जान, अम्मी जान। वो एक लाश में तब्दील हो चुकी थी। वो मेरी अम्मी नहीं थी। पर जैसे ही उन काफिरों की भीड़ ने उस लाश को उठाया तो उस भीड़ में से एक आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। मेरे मन का पत्थर पिघल गया था और मुंह से सच निकल गया था, जहन्नुम, जहन्नुम, जहन्नुम। और आज मेरे पास Thank you, Yatharth. That was truly refined and enticing performance. We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we dance for screams. We are the dancers, we create dreams. Dance is the most beautiful form of expression of humans' feelings. Dancers are the messengers of the gods. We present our next dance performance by Anshika and Akanksha from Males. नजर जो तेरी लागे दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जल्दी न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते
मौजूद है यहाँ। सनी देओल सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको? हैंड पंप मिल जाता तो मजे आ जाते। हैंड पंप सर आपको मिल जाएगा, हैंड पंप भी दे देंगे आपको सर। सर लेकिन सर आपको अगर इस गैदरिंग में शामिल होना है तो मेरी कुछ शर्तें हैं सर। बोलिए, करेंगे शर्तें पूरी? करूंगा। तो सर बोलिए। किसको मारना है? नहीं सर, कुछ बोलना पड़ेगा सर आपको। सर बोलिए ऑरा जिंदाबाद। ऑरा जिंदाबाद। बोलिए सर, बोलिए FIM जिंदाबाद। FIM जिंदाबाद। सर बोलिए I am मुर्दाबाद। तेरे ऑरा जिंदाबाद होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। FIM जिंदाबाद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन I am जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। गुरु जी सो गर्दन उपाड़ दूंगा तेरी। सर तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज बाय I am, प्लीज वेलकम। सुबह सुबह चले शर्मा जी अपनी श्रीमती के साथ बाजार। सुबह सुबह चले शर्मा जी अपनी श्रीमती के साथ बाजार। उनकी भी लीला है अपरंपार। सोचा था पत्नी जी खुश हो जाएंगी, एक दिन दाल रोटी छोड़ कुछ खास पकवान खिलाएंगी, लेकिन उनकी भी लीला है निराली। एक तरफ है माँ और दूसरी तरफ घरवाली। अरे माँ मेरी घर से निकाल दूं क्या? लेडी का है ना। हम चाहे, हाँ हम तो है ही चाहे। एक काम करियो, नानी बहाना उस अपनी पोखी मार के ले ले शॉपिंग। मैं तो तेरा देखो कोई पैसे। भर के दहेज हम कटोरा लेके आए थे। आई बड़ी अबे क्या कर रहे हो? कहीं भी खुदाई करे जा रहे हो। एक तो ये खून चूस के रखती है, बच्चा कुछ तेल तुम निकाल लो। तेल नहीं बाबूजी, पानी नहीं डाल रहे हो। अरे पानी नहीं डाल रहे बाबूजी, पानी का दाम डल रहा है। अब बदला धोने दे, भाई साले में तो पानी तो निकलेगा बाबूजी। अबे भंड हो क्या? कहीं भी खुदाई चालू कर देते हो। मैनेजर का है तुम्हारा, मैनेजर का है तुम्हारा। पोपली की बेटी नीचे देख। तुम्हारे दादी यहाँ भी शुरू हो गए। हे भगवान, लगता है पतियों को कहीं आराम नहीं मिल सकता, गड्ढे में भी नहीं। अरे यार कुछ नहीं जानू, कुछ नहीं। भाई साहब जरा सुनिए, ये गड्ढा बंद कर दीजिए, तभी इनको शांति मिलेगी। अरे तुम भी ना बड़ी जल्दी नाराज हो जाती हो। मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज जानू, मुझे इस गड्ढे से निकलवाओ ना जल्दी। यहाँ ना बहुत अंधेरा है और तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। हाँ, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं जरा पड़ोसियों को बुला के लाती हूँ। मोटी जी, सुनिए।
भाभी जी कैसी है? अरे कमाल लग रही है। वो तुम्हें, और वो सब छोड़िए, देखिए ना मेरे पति गड्ढे में गिर गए। क्या? नेहा जल्दी आओ, वो हमारे पड़ोसी के गड्ढे में गिर गए हैं। अच्छा 2 मिनट रुको जरा, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आना। 1 घंटे से ऊपर हुआ तो अकेले ही चले जाएंगे, फिर मत कहना कुछ। हाँ हाँ ठीक है। शर्मा जी के लिए कुछ खाने के लिए रख ही लेती हूँ। पता नहीं शर्मा जी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। चलिए चलिए जल्दी चलिए। हाँ जल्दी चलिए। शर्मा जी देखिए, मिस्टर और मिसेस गोटे आ गई हैं। अब आपको नहीं होगा। क्या सच्ची भाभी जी आई हैं? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं जानू, मैं कह रहा था कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। गोटे जी इनको प्लीज बाहर निकाल देना प्लीज। भाभी जी वो सब तो ठीक है, ये आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएंगे। पहले ये बताइए नीचे गिरे कैसे? अरे गिरे कैसे छोड़िए, आप भी ना ये पूछिए कि कुछ खाएंगे या नहीं। रहने दीजिए आप, मैं ही पूछती हूँ। शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी आपको भूख लगी होगी ना? क्या खाएंगे आप? क्या खाएंगे? अरे गड्ढे में गिरो आदमी भला कोई ऑर्डर देता है क्या? जो है डाल दो। हाँ भाभी जी, जो आप प्यार से खिलाएंगी वही हम खा लेंगे। तो चूहे मारने की दवाई डाल दो इसको। अरे भाभी जी आप गलत समझ रही हैं, वो चूहे होंगे ना नीचे, इसलिए कह रहे थे। आप तो चुप ही रहिए। भाभी जी आप खाना दीजिए। वैसे आप मुझे खाने गड्ढे में से निकालने के लिए आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे शर्मा जी आप भी ना, ये तो मेरा फर्ज था ना। अब तुम्हारी हो गई हो तो इनको ऊपर निकालने का सोचे क्या? हाँ गोटे जी प्लीज इन्हें निकालिए प्लीज प्लीज। वैसे आपके लिए ना हम जान भी दे देंगे, मगर हाथ नहीं दे सकते इनको। अरे गड्ढा काफी गहरा है ना, हमसे अकेले ना हो पाएगा। हाँ तो आप क्या करें? मुझे लगता है अब हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, अब वही कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। गोटे जी आप ही जाइए ना, मैं जैसी औरत लड़की मैं कैसे जाऊंगी पुलिस स्टेशन? आप जाइए ना प्लीज प्लीज। हाँ देखते हैं, जाते हैं हम। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, अबे ओ इंस्पेक्टर। अबे कौन है बे? अरे वो पड़ोसी है ना हमारे, वो गड्ढे में गिर गए। अबे अंदर है क्या तेरा पड़ोसी? गड्ढा ना दिखा उसको, ऐसे कैसे गिर गया? अब कैसे गिरे, क्यों गिरे, हमें क्या मालूम। वो तो भाभी जी ने बोला तो हम उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, वरना हमें क्या। अबे भाभी के चमचे हमें भाभियों की परेशानी सुझा रहे नहीं बैठे। नगर पालिका वालों का है भाई, ये जो जहाँ जगह मिली गड्ढा खोद देते हैं, बनने की तो दूर की बात। अच्छा ठीक है, अब इससे ज्यादा हमसे ना होगा।
लगता है भाभी जी को अब हमें ही संभालना पड़ेगा। Nick, what is this? यूं तो हमारे देश में हर गली में होता है एक गड्ढा, पर जो नहीं है वो है गड्ढू जी जैसा एक आदमी। गड्ढू जी जो कि यहाँ इस गड्ढे में गिरे हुए हैं। आज हम दिखाएंगे उनकी कहानी। स्पेशल रिपोर्ट हमारे चैनल पर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर चल रहा था बोरिंग का काम। ओके फाइन निक। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर चल रहा था बोरिंग का काम और पानी के लिए ये महाशय सीधा इसके अंदर घुस चुके हैं। आइए हम गड्ढू जी से पूछते हैं। गड्ढू जी, गड्ढू जी, गड्ढू जी, कैसा लग रहा है आपको? जी मजा आ गया। तो देखा आपने कैसे दर्द से कर्रा रहे हैं ये शख्स। आइए हम इनकी पत्नी के पास चलते हैं। जी मिसेस गड्ढू, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरा पति गड्ढे में गिर गया, उनकी मदद कीजिए प्लीज। जी मिसेस गड्ढू, आपके पति गड्ढे में गिर चुके हैं, क्या आपको कोई सहायता मिली है? नहीं बहन जी, मुझे कोई बहन जी, my God! बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सिर्फ और सिर्फ एलईडी टीवी चैनल पर। हाँ, let us go Nick। जिंदाबाद! जिंदाबाद! आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर किसी कारण आप हमें मंत्री बनाएंगे तो हम इस आदमी को गड्ढे से निकालेंगे। हम पे विश्वास रखिए, हम अपनी जुबान के पक्के हैं। हम बाकी पार्टियों की तरह नहीं है जो अपनी बात पे नहीं रहते। विश्वास न हो, आजमा के देखिए। और अगर किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो जाती है तो हम इनके परिवार वालों को मुआवजा देंगे। ये वादा है हमारा। बात बताइए, आप निकालेंगे उसको गड्ढे में से? अरे मूर्ख होगा, अब हमारे पास इतना टाइम कहाँ? क्या करेंगे भैया? PWD MCD पे छोड़ दो ये सब। उन्होंने निकाला तो ठीक है, वरना वही छोड़ देंगे तड़ने को, और कुछ दिनों बाद जनता ने वैसे ही भूल जाना। शर्मा जी, शर्मा जी, देखिए मैं आई हूँ मिसेस कोटे। शर्मा जी, आपने खाना खा लिया है ना? शर्मा जी, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। सर सर, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं वो। शर्मा जी, शर्मा जी, अरे हो शर्मा जी।
मैडम जी, आधा घंटा हो गया, शर्मा जी जवाब नहीं दे रहे। लगता है आपके पति अब हमारे साथ नहीं रहे। निक, अभी अभी हमें खबर मिली है कि कनु जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो देखा आप सबने कैसे खूनी कटे ले ली एक और जान। निक, मैं हूँ खबरी घसीटा, कैमरामैन नकली पपीता के साथ। ओह, अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? अरे कौन है? अरे भैया जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। अरे भैया हमको बोला गया था कि दद्दा बलिया, दद्दा बोल रहे हैं। अरे भैया जिंदा हूँ, जिंदा जिंदा। अदल भैया आपको नहीं दिखता था, पुलिस वालों के बात चलिए जाते। क्या? अदल भैया आपको तो दिखता था, आप पुलिस वालों के बात चलिए जाते। अरे यार क्या बोल रहे हो? अरे भैया अगर आपको कोई दिक्कत है तो पुलिस वालों से एप्लीकेशन लिखवाइए, उस पे जाके एमपीसी से मोहर लगवाइए और फिर उसको लेके जाइए पीडब्ल्यूडी के पास। अगर पीडब्ल्यूडी का डायरेक्टर उस पे साइन करेगा तभी हम हटेंगे, वरना तब तक तो हम सुनेंगे अपने दाने और हम तो दद्दा बनेंगे। अरे रुको, अरे दद्दा तो बल दे, आप चलते हैं।